So very good morning to all of you. 13.4 last question was going on. So I will take the two parts that we have done yesterday once again so that we can make a proper link to the third part. Chaliye, question number 9. There is a cylinder in which a sphere is just enclosed. Just enclosed meaning that I have told you yesterday also that this sphere is touching the bottom, the right corner, the top, bottom and the left corner exactly in the cylinder. Cylinder के बीच में इस sphere ने इसका bottom, इसका top, इसका right, इसका left जो है completely उसको touch किया है, right? That is the meaning that it is just enclosing in the cylinder, right? So as far as the radius is concerned, it is given that the radius of the sphere is r. Suppose this is the center of the sphere. Radius of the sphere is r. Same will be the radius of the cylinder. If the sphere wants to fit itself in the cylinder completely, then the radius of the cylinder should be equal to the radius of the sphere. This is the general concept कि दोनों के रेडिया इक्वल होंगे तभी जो है स्फीयर है वो सिलेंडर में अपने आप को फिट कर पाएगा. Secondly, if this is the center of the cylinder's upper base and this is the center of cylinder's lower base, then the line joining these two centers, that is the axis or the height of the cylinder, this will also pass through the center of the sphere. This is also due to the sphere is just emerging, just fitting itself in the cylinder, right? It's just in fitting की वजह से ये सारी बातें हो रही हैं कि radius of the cylinder sphere की radius के equal आ गया और जो height of the cylinder है that is also equal to the that is also passes through the center of the sphere. ठीक है? So first part was हम लिखेंगे radius of sphere is equal to r. हमें sphere की radius दी हुई है r and हम find करना चाहते हैं surface area of the sphere. Surface area of sphere, let us denote it by capital S. This is equal to 4 pi r square and it will be as it is 4 pi r square. So radius of the sphere, surface area of the sphere is 4 pi r square as per the formula. Second part, he says find the curved surface area of cylinder. Curved surface area of the cylinder is to be find out. We know the formula for the curved surface area of the cylinder, and what is the formula? 2 pi RH. 2 pi RH is the formula for the curved surface area of the cylinder. That means for that we need the radius, we need the height, right? So let us write radius of the cylinder is equal to रेडियस ऑफ स्फीयर. सिलेंडर का रेडियस स्फीयर के रेडियस के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास सिलेंडर का रेडियस भी r हो गया. ठीक है? नाउ वी सी हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ द स्फीयर. जो हमारे पास स्फीयर आया उसका डायामीटर, ये देखो ये रेडियस है, तो स्फीयर का डायामीटर अगर हम फाइंड करना चाहें टोटल 2r हो जाएगा डायामीटर स्फीयर का. अगर रेडियस r है तो जो स्फीयर का डायामीटर है दैट इज 2r, दैट विल बिकम द हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो दिस इज 2r. हाइट अरेंज हो गई, रेडियस अरेंज हो गई. नाउ वी कैन गो विद द कर्व सरफेस एरिया. सो लेट अस सी. देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi r h. 2 pi r रेडियस उतनी है, r ही है हमारे पास सिलेंडर की रेडियस. एंड व्हाट इज h? h इज 2r. सो सॉल्विंग इट 4 pi r स्क्वायर. इसको मैंने बोला था आप c कहते हैं. सो c दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इट कम्स आउट टू बी 4 pi r स्क्वायर. इसकी वैल्यू हमारे पास 4 pi r स्क्वायर आ गई. जबकि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकाला था? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. उसकी वैल्यू कितनी आई थी? बोलो सरफेस एरिया 4 pi r स्क्वायर. अब हम थर्ड पार्ट क्या कहता है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज यू हैव फाइंड इन फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो एरियाज फाइंड किए उनके रेशियोज फाइंड करो. तो थर्ड पार्ट वी आर डूइंग
S ratio C, surface area of the sphere to the curved surface area of the cylinder. This is 4 pi r square, ratio 4 pi r square. Ratio means division, first term divided by the another term, second term. So this is 4 pi r square over 4 pi r square, get cancelled. 1 over 1, 1 ratio 1 is the answer for the ratio of the surface area to Earth, H की value to Earth. So this is the answer for the ratio of the surface area and the curved surface area of the sphere and cylinder. Note down, कर लो इसको note. Done. Should we start with the next concept? चलिए. Yes. So 4 exercise we have finished till now. 13.1, 2, 3, 4, and we have discussed about cube, cuboid, cylinder, cone, sphere, हेमिस्फीयर. इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. इनके क्या हमने डिस्कस किए हैं? इनके कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. These two things we have discussed in these 4 exercises. That means half of the chapter is over. Now only the concept of volume is left. In the coming exercise, that means 13.5 to 8, 9, whatever, we will discuss about the volume of the same figure. जो figures, जिन figures का हमने curve surface area, total surface area discuss किया, in the later exercises that are coming right now, we will discuss the volume of the same figures. अब हमने इनके वॉल्यूम्स को डिस्कस करना है. चलिए, इससे पहले कि हम वॉल्यूम क्यूब क्यूबॉइड वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करें, लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, द डेफिनेशन, द फॉर्मूला. चलिए, वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट. solid 3D object. It is a space occupied by the object. Space occupied by the object. जो हमारे पास वॉल्यूम होता है 3D ऑब्जेक्ट का, व्हाट इज दिस? दिस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट? अब आपको पता है जब हम वॉल्यूम, जैसे मैं अभी इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आई वुड लाइक टू मेक अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइडल आप कोई आपके पास एक गेम होती है ना क्यूबॉइडल, जिसको ऐसे बच्चे क्यूब बनाते हैं, तोड़ मरोड़ के ज्वाइन करते हैं, कलर्स एक जैसे कलर्स आ जाते हैं, क्यूबिक्स क्यूब. तो उसको जब आप सरफेस पे रखते हो, इट इज नॉट ओनली कवरिंग द बेस, बट इट इज ऑल्सो कवरिंग, इट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सम स्पेस आसपास के हिस्से में. अगर मैं उस क्यूब को यहाँ पे रखूंगी तो वो सिर्फ इसको नहीं, आसपास के हिस्से को भी, अंदर से भी, सब जगह स्पेस को कवर करेगा. तो उसी को बोलते हैं उसका वॉल्यूम. दिस इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. बट सपोज अगर यही ऑब्जेक्ट होलो हो जाए, जैसे कि आप अपने घर के टैंकर को इमेजिन करो, सिलेंड्रिकल होता है, पर चलो हम क्यूबॉइडल लेके चले तो मान लो क्यूबॉइडल हमारे पास टैंकर है, उसका वॉल्यूम कैसे होगा? फिर उसने तो अंदर से कोई स्पेस कवर किया ही नहीं है, इट इज होलो इनसाइड. देन वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया होलो, विच इज होलो इनसाइड. अगर ऑब्जेक्ट होलो होगा तब हम उसके वॉल्यूम को स्पेस से तो डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर से कोई स्पेस उसने कवर ही नहीं किया, कोई स्पेस उसने ऑक्यूपाई नहीं किया, अंदर से सारा खाली है. तो दैट विल बी कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू कंटेन the amount of
लिक्विड, एक ऑब्जेक्ट का जितना कैपेसिटी होता है, जितनी वो लिक्विड अपने में भर सकता है, जितनी लिक्विडिटी हम उसमें डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस टू डिफरेंटली. इसमें मैंने स्पेस ऑक्यूपाइड लिखा, इसमें कैपेसिटी लिखा. समटाइम्स इन द एग्जाम it is written that the tanker has this much these dimensions, find the capacity of the tanker. तो वहां पे उठ के खड़े होकर ये नहीं बोलना हमें कैपेसिटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, वो वॉल्यूम ही है, बस उसका नेम चेंज हो गया जस्ट बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज होलो, तो उसकी लिक्विडिटी उसका वॉल्यूम बन गई. दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग देम इन द डिफरेंट वे, that we should know the meaning exactly, that in case of hollow object it is called capacity, and in case of the solid object it is called space occupied. Otherwise both are the same, both are having the same formulas, सिर्फ एक नेम में डिफरेंस आ गया because of the shape of the object. चलिए, designing of the object, material used in the object. कैपेसिटी जब आएगी तो ये मत कहना कि हमें करवाया नहीं हुआ फॉर्मूला. इट इज समथिंग सेम एज वन थिंग लाइक वॉल्यूम, राइट. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूलाज. आपको याद है जब मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया वी डिस्कस्ड, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, I have told you that curved surface area, behind curved surface area, the logic is working that perimeter of base into height. कैसे होता था, ये मान लो हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इसके बेस का पेरीमीटर ये 7 वाला, बीच वाला हमने कोई चीज नहीं ली, जितना पेरीमीटर इस बेस का है वो उसने उतने वहां पे आके बैठा ऑब्जेक्ट, उतनी जगह पे बैठा और हाइट से ऊपर उठता गया, तो पेरीमीटर इनटू बेस इनटू हाइट से बाहर वाला एरिया कवर हो गया, अंदर कुछ नहीं आया क्योंकि हमने बाउंड्री टच की है. ठीक है, हाँ जी भावना. मैम आपने वॉल्यूम की डेफिनेशन में अमाउंट ऑफ लिक्विड क्यों लिखा था? क्योंकि जो होलो ऑब्जेक्ट होगा उसमें हम लिक्विडिटी फिल करेंगे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, मोस्ट ऑफ होता है, तो दैट्स व्हाई हमने अमाउंट ऑफ दी आप कह सकते हो मटेरियल कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट. चलिए, तो जब हम पेरीमीटर ऑफ द बेस की बात करते थे तो इसका मतलब हमने बाउंड्रीज को टच किया, सिर्फ हाइट से ऊपर चलते रहे, साइड वाली चीजें कवर हुई, अंदर वाली चीज कवर नहीं हुई. बट जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, when we are talking about volume, आप इमेजिन करो आपके घर की छत है, छत के चारों साइड पे दीवारें हैं, बारिश हो जाती है, सारा पानी छत पे खड़ा होना शुरू हो जाता है, तो पानी को क्या आपने बोला हुआ है कि मेरी छत के इस हिस्से में नहीं तूने आना? ऐसा होता है कभी कि छत का एक हिस्सा बिल्कुल सूखा रह गया और पूरी छत पानी से भरी हुई है? इट नेवर हैपन ना. सो इट मीन्स कि जो आपके घर की रूफ है, वाटर कैन बी कैन एनीवेयर ऑन दैट रूफ, एनीवेयर क्या, एवरीवेयर इट विल बी. ठीक है, तो पानी बेस पे आना शुरू करता है, बेस पे आया, आपकी रूफ के बेस पे आया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया दीवारों के साथ साथ, जितनी हाइट है उतने तक चढ़ गया, और जब ऐसा हो जाएगा तो छत पूरी तरह से भर जाएगी. ठीक है, आप टैंकर को इमेजिन कर लो, आपके घर पे मान लो कि बॉयडल टैंकर है जिसमें टैंकी पानी भरता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टैंकर शुड बी फिल्ड, अदरवाइज तो हाहाकार मच जाती है घर में, है ना. तो उस टैंकर में भी क्या होता है, पानी पहले जाके बेस पे बैठता है, जितना बेस है उतना बैठ जाता है, उसके बाद इट टेक्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट गोज अप एंड अप एंड अप एंड अप, और जब व्हेन इट टचेस द टॉप सरफेस, हमें कुछ एक के घर पे अलार्म लगा होता है कि कृपया मोटर बंद कर दीजिए, टैंकी भर गई है, और कुछ के घर में हम खुद ही बंदे अलार्म बने होते हैं कि ऊपर टैंकी भर गई जी, मोटर बंद कर दो. ठीक है, तो वो अपने आप ही पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा. तो मैक्सिमम पानी कितना भरेगा, जितनी की हाइट तक जाता है. तो वॉल्यूम के पीछे जो हमारा कॉन्सेप्ट वर्क करता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. क्योंकि पेरीमीटर में हमने सिर्फ बाउंड्री लेनी थी कर्व्ड सरफेस एरिया में, इसलिए पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट हो गया. बट वॉल्यूम में वी हैव टू फाइंड ऑल, वी नीड द होल इनसाइड, सो दैट्स व्हाई we are taking area of the base into height, right? So this is the concept working behind the
वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। इसी के थ्रू मैं वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलाज डिराइव करूंगी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कई बार एरिया ऑफ द बेस दिया होता है और हाइट दी होती है, आपने वॉल्यूम निकालना होता है, तो आप सीधा बेस अपना कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला लगा दो, आपको कोई फॉर्मूला तब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला विल बी अप्लाइड इफ एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट इज गिवन। चलिए, अब हम इसी चीज को बेस बनाते हुए विल डिस्कस दी वॉल्यूम ऑफ as far as 13.5 is concerned, it is based on volume of a cube and cuboid. So I will discuss with cube and cuboid. Let us start with volume of cuboid. ये हमारा cuboid, area of base into height. याद है सबको, मैंने करवाया हुआ है वैसे। अखिलेश से पूछते हैं। अखिलेश, 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 unmute yourself. अरमान, अरमान, बलजिंदर कौर। Yes, ma'am. अच्छा, अरमान is unmuting himself. Arman, you tell me that we have done cuboid and I have told you to remember it, that what are the dimensions which are including in the base of the cuboid? L into B. L into B, तो base का area भी क्या हो जाएगा? L into B. ठीक है, so area of the base is L into B, and what is height? We are taking it to be H. So what is the formula for the volume of the cuboid? This is L into B into H. अब देखना, 1 मीटर आया L का, सपोज मीटर में डायमेंशन है, 1 मीटर आया B का, 1 मीटर आया H का, क्या बना? मीटर क्यूब. So it means volume is always measured in the cubic units. कभी भी किसी भी चीज की वॉल्यूम का आंसर हम मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते, इट विल बी मीटर क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम इज ऑलवेज मेजर्ड इन द क्यूबिक यूनिट्स. हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में हमने वॉल्यूम को मेजर करना है, राइट? मीटर क्यूब. मैम म्यूट कर लूं? हाँ जी बच्चे, डेफिनेटली. सो अब हम बात करते हैं क्यूब की. वॉल्यूम ऑफ क्यूब से LBH की जगह A पुट कर दो. दिस इज A क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिस इज इक्वल टू A क्यूब. क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास A क्यूब आ गया. So on the basis of these two formulas, we will do exercise 13.5. Whole exercise is based on these two formulas. Let us start with 13.5. First question, let us read out the statement. सबके पास, I hope that those who are sitting at home and listening to me by the Zoom platform, they must have the books aside to read out the statement carefully. A matchbox measures 4 centimeter by 2.5 centimeter by 1.5 centimeter. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है. हम लिख लें फटाफट से. L 4, B 2.5, H 1.5. L, B and H लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट मैच बॉक्स की हमें गिवन है. He says what will be the volume of a packet containing 12 such matchbox. एक पैकेट आप मार्केट से यू बाय अ पैकेट ऑफ द मैच बॉक्सेस व्हिच इज कंटेनिंग 12 मैच बॉक्सेस. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट पैकेट? वैसे जनरली अगर मैं पूछूं बिना फॉर्मूले के, वन पैकेट इज कंटेनिंग 12 मैच बॉक्सेस, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वन पैकेट? दक्ष पावा, दक्ष पावा, दक्ष, what will be the volume of the packet which is containing 12 match boxes? It will be equal to what? Ekjot Singh, Imani, Imani. Length into breadth into height. कोई फॉर्मूला नहीं, मुझे जनरली बताओ कि एक पैकेट में अगर 12 मैच बॉक्सेस हैं तो उस पैकेट का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा?
if a packet is containing 12 match boxes, then volume of the packet is equal to what? Okay, boy. Volume of the packet will be equal to what? Mishti, you tell. Mishti. फॉर्मूला तो मैं पूछ ही नहीं रही बच्चे. 12 boxes के 12 boxes के 12 बॉक्सेस के क्या? 12 बॉक्सेस के 12 बॉक्सेस के एरिया, हाइट, क्या? मिस्टर यू The box could मैम 1 मैच बॉक्स के इक्वल. क्या पूरे पैकेट का वॉल्यूम 1 बैच बॉक्स के वॉल्यूम के इक्वल? मैम मतलब 1 मैच बॉक्स का जो हम फॉर्मूला लगा के करेंगे तो 12 मैच बॉक्सेस को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा. बिल्कुल. कि अगर मुझे पूरे पैकेट का वॉल्यूम निकालना है तो उसमें 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम जो है वो इंक्लूड होगा. अगर एक पैकेट में 12 चीजें हैं तो उसका वॉल्यूम 12 चीजों के वॉल्यूम के इक्वल होगा. वेरी क्लियर इट इज, वेरी ऑब्वियस इट इज. सो नो नीड टू थिंक दिस मच कि एक पैकेट का वॉल्यूम कितना होगा जिसमें 12 मैच बॉक्सेस हैं. 12 मैच बॉक्सेस के वॉल्यूम के इक्वल होगा, राइट? So we are given the dimension of one match box. Let us find the volume of one match box. So volume of one match box equal to length into breadth into height. 4 into 2.5 into 1.5. 10 into 1.5. That is 15 centimeter cube. 15 centimeter cube is the volume of the one match box. So write down. Therefore, volume of the packet is equal to volume of 12 match boxes. This is 12 into 15. 180 centimeter cube is the answer of the whole packet's volume that we have find out. This will be 180 centimeter cube. I hope I am clear with this question, with this solution. Okay, chaliye. Let us start with the second question of the exercise. Second question of the exercise we are going to start with. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. जब आप डेप्थ की बात करते हो ना, दिस इज समथिंग एज हाइट, तो वो हाइट के इक्वल होता है. अब किसी भी चीज को देख लो, एक रिवर है, उसकी जो डेप्थ होगी यही वाटर की हाइट होगी, जिस हाइट पे वाटर उसमें है. तो डेप्थ मींस हाइट. चलिए लेट अस राइट हियर L is equal to 6 meter and breadth is equal to 5 meter. Height H is equal to 4.4 meter. 4.5 मीटर. L, B and H. मुझे मैं क्वेश्चन बाद में, मेरे को पहले डायमेंशंस को आता है, फटाफट से डायमेंशंस लिख लो. व्हाट वी आर नोइंग. चलिए लेट अस रीड आउट द स्टेटमेंट. How many liters of water it can hold? Now the students are thinking and saying that this question is not in our syllabus. हमने तो इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं किया हुआ. So I have told you that the quantity of the things, object, material, liquidity that an object can contain is known as its क्या? known as its क्या? volume. So हम लिखेंगे quantity of water that the tank can hold, is equal to volume of the tank. And this is L into B into H. This is equal to 6 into 5 into 4.5.
30 into 4.5, 135 मीटर क्यूब. अब उसने पूछा how many liters of water, that means meter cube is to be turned into liters. तो क्या होता है मीटर क्यूब्स को लीटर में, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, that is multiply by 1000 liters, and 1 liter is equal to 1 by 1000 मीटर क्यूब. लीटर से मीटर क्यूब में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 और मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000. So this much liter is the capacity, this much liter is the water, quantity of the water that can be held in the tank. चलिए, let us start with question number 3rd. Question number 3rd we are going to start with. A cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. Length 10 meter, breadth 8 meter. Cuboidal vessel की हमें dimension दी हुई है, length breadth दी हुई है. We have written to be 10 meter and 8 meter. How high must it be made to hold 380 cubic meters of liquid? How high it must be made to hold 380 meter cubic of the liquid? यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी to some of you. Let me ask it from Keshav Kalda. Keshav, unmute yourself. Keshav Kalda. Kanishka 9th P. Kanishka. Kanishka 9th B. Harshilpa or Kanishka, you tell. Kanishka, what is 308 here? 308 क्या दिया हुआ है हमें? 308 क्या है? Sorry, 380 क्या है? How high must it be made to hold 380 cubic meters of liquid? So what is 380 here? Kanishka. मैम एरिया. एरिया क्यूबिक मीटर में एरिया होता है? नहीं. क्यूबिक मीटर है 380 का यूनिट. सो व्हाट इट विल बी? अभी तो मैंने बताया कि क्यूबिक मीटर यूनिट में क्या आता है. Nishka, it means you are not listening carefully. Raghav Siddhana, you tell. Ma'am, volume. 380 is the volume. How you judge it to be volume, Raghav? Raghav Siddhana. बच्चे, how you judge it to be volume? मैम क्योंकि इसका जो यूनिट्स है वो क्यूबिक मीटर्स में है. अच्छा, एक बात तो ये होगी. और कोई बात जिससे ये लग रहा है आपको कि ये वॉल्यूम ही होगा? कुछ और हिंट? मैम क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है हाउ मच हाइट इट मस्ट बी मेड टू होल्ड इसलिए क्योंकि उसके अंदर जौन सी चीज आएगी वो बिल्कुल वॉल्यूम ही ठीक. होगी. To hold one thing, that means the thing which is holding, that is the capacity, that is the volume. So two major hints are providing here to identify that what 380 is here. And Ganishka, you're not able to identify the hints. That 380 cubic meter means volume, and holding the capacity of 380 meters means 380 is the volume. We want to find, he says, उसको कितना हाइट पे इस टैंक में अगर 380 मीटर क्यूब पानी है तो इसको कितनी इसकी हाइट करनी चाहिए कि इसमें 380 पानी आ जाए. तो हमने h निकालना है. So write down, let h be the height of the water tank vessel है, sorry. Let h be the height of the vessel. h को हमने वेसल की हाइट ले लिया.
Now volume is equal to 380 meter cube. तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला L into B into H 380. Putting the values of L and B, 10 into 8 into H 380. So this is 80 into H equal to 380. So H is equal to 380 over 80. Meters. H is equal to, so it's been told you earlier that you have to send your notebooks today positively, so accordingly send it in the group only, not individually. So H is equal to 4.75 meters. अब हाइट है तो मीटर्स में है, मीटर क्यूब में अगर हमारा वॉल्यूम है तो हाइट मीटर में हमने लिख दी 4.75 मीटर्स. चलिए भाई, let us start with question number 4. Question number 4. See, find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad, 3 meter deep at the rate of 30 per meter cube. एक क्यूबॉइडल पिट है, उसकी डिगिंग करनी है, मींस इसमें से मिट्टी खोद खोद के बाहर निकालनी है. ठीक है, तो कॉस्ट का हिसाब किताब दिया हुआ है, वो बात की बात है. पहले तो हम ये देखें कि अगर एक क्यूबॉइडल पिट की हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, इतनी लेंथ इतनी ब्रेथ और इतनी हाइट पे मिट्टी खोदी जानी है, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द अर्थ, दैट मींस मिट्टी, कैन बी डिग आउट ऑफ इट? दिस इज माय क्वेश्चन टू प्रभनूर सिंह. प्रभनूर सिंह, if the earth is to be digging out from this much dimensions of the pit L, B and H, then how much quantity of the earth could we come out after digging? Prabhnur Singh. No reaction of Prabhnur Singh. Harshdeep Kaur. मैम इसमें हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करके L इंटू बी इंटू एच करके निकालेंगे, फिर कॉस्ट जितना आंसर आएगा उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. You are telling me the solution of the question. I am not asking the solution. I am just asking that how much quantity of the earth will be dig out? कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी? That will be equal to what? कैसे निकाली जाएगी quantity of the earth? अगर एक क्यूबॉइडल पिट है, इसकी हाइट है, कुछ इसकी ब्रेड्थ है, कुछ इसकी लेंथ है, इसमें से हमने मिट्टी निकालनी है, तो कितनी मिट्टी निकलेगी? वो किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम. दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम. बिल्कुल ठीक. हु सेड दिस? राघव सिदाना. देख ले राघव, केशव रिखी ने तेरी आवाज पहचान ली है, कहता राघव सिदाना बोल रहा है. गुड. चलिए, सो पहले लिखिए L 8 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर. कॉस्ट ऑफ हाइट. चलिए हम लिखेंगे अर्थ टेकन आउट, अर्थ टेकन आउट ऑफ डिगिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पिट. गड्ढे का वॉल्यूम, जितनी मिट्टी उसमें से आई, दैट इज L इंटू बी इंटू एच. 144 meter cube earth will be taken out after digging this pit up to the height of 3 meters. Cost की बात करें, 1 meter cube, that means per meter cube के लिए कितना cost है? ₹30. So we'll write cost of digging 1 meter cube कितना है? ₹30. Therefore cost of digging 144 meter cube
144 into 30. 4,320 rupees will be the answer for this question, the cost. So this is all about today's lecture. So we'll meet tomorrow. Stay safe.